Good morning, students. Now, today we are going to discuss about the unit 3 of DBMS. In this unit, we are going to discuss about the concepts of basics of functional dependencies and normalization for relational databases. We are going to discuss the various issues that are being needed and studied inside in this unit. If you look, we are going to cover these basic structure. These are the outlines that clearly define that what are the topics that we are going to study in this unit. So basically we are having the discussion regarding the informal design guidelines for relational database, which comprises of the semantics of relational attribute, redundant information in tuples and update anomaly, null values in tuples, spurious tuples, along with the functional dependencies. We will also study that what is actually the functional dependency. Then we will study about the normal forms based on primary keys, which comprises of these different topics that we are going to cover. Besides this, we will see the general normal form definition for 2NF and the 3NF, along with the most important normal form, that is the Boyce-Codd normal form. We will also see that how the fourth normal form and fifth normal forms are going to be defined on the basis of the multi-value dependency and the join dependencies. Now we are going to discuss about the lecture number 1. In this lecture number 1, we are going to study about the first important thing that is being needed to define the relational database in terms of its goodness or badness. That means we are going to describe that whether the database that is being created by the database designer is good in all respect or it is bad in design phase. So we are going to check about the informal guidelines, design guidelines for the relational database. Now, before going into the greater depth, first of all, we must know the certain introduction, then only we will be able to study the proper guidelines. So, the first important point is what is relational database design? Now, we have created a database. We have created first of all the schema, and on the basis of the schema, we have created the database. Now, the question arises, how can we say that our design or our database is not good in all respect? That means what is the thing that we are going to check and say that whether it is good or bad. So the first important thing to note is what is relational database design. तो जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन की बात करते हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है. जब भी हमारे पास डेटाबेस का डिज़ाइन होता है या डेटाबेस बनता है तो उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं. दैट मीन्स वी आर हैविंग द ग्रुपिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म द गुड रिलेशनल स्कीमास. And on that basis, we can say that we are having the two levels of relation schemas, the logical level and the storage level. The logical level defines the user view and the storage level defines the base relation level. So on the basis of these two levels, we are going to check that whether all the logical things that are being present inside in the database is good or bad. तो सबसे पहले हम लॉजिकल व्यू को देखते हैं. लॉजिकल व्यू से ये पता लगाते हैं कि क्या हमारा डेटाबेस सही से बना है, सही से उसके अंदर एट्रीब्यूट्स और टपल्स हैं, जिससे कि हम अगर कोई भी ऑपरेशंस उसके उस डेटाबेस के थ्रू परफॉर्म करते हैं, एसक्यूएल के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से, तो क्या वो हमारे क्वेरी का एक्यूरेट रिजल्ट निकल कर उस टेबल से आता है. सो दैट इज़ द बेसिक थिंग दैट इज़ बीइंग डिफाइंड इनसाइड इन द लॉजिकल व्यू. The next is the storage level. What happens in this storage level? अगर आपका लॉजिकल लेवल सही होगा तो आपके पास नेक्स्ट लेवल क्या होगा, फिजिकल लेवल होगा, क्योंकि फिजिकल लेवल में ही आप डेटाबेस को स्टोर करते हैं. सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट था. कंसेप्ट से हमने क्या किया, कंसेप्ट से हम आए लॉजिकल लेवल पे, लॉजिकल लेवल से हम आए फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस पे. तो सबसे पहले डिज़ाइनर ने कंसेप्ट बनाया कि भाई हमारा डेटाबेस ऐसा होना चाहिए या ये चीज़ें हम उम्मीद करते हैं कि हमारा डेटाबेस ऐसा हो. तो ये क्या था, कंसेप्चुअल लेवल था. उसके बाद आया हमारा लॉजिकल लेवल, जब हमने उसमें एक्चुअल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया. अब अगर हमारा रिलेशनल मॉडल यहाँ पर बनता है तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी सब चीज़ें जो कि हमें चाहिए थी वो मौजूद हैं कि नहीं हैं. अब अगर लॉजिकल डेटाबेस गलत होगा, लॉजिकल रिलेशनल मॉडल गलत होगा, तो इसका मतलब उसका इफेक्ट हमारे फिजिकल लेवल पे भी पड़ेगा. तो फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक्चुअल में जहाँ पे डेटा आपका स्टोर होता है. भाई फिजिकल लेवल का मतलब यही तो है कि आपका यहाँ पर जाके एक्चुअल में डेटा फिजिकली स्टोर होता है. अब आप जब इस स्टोर डेटा में कुछ भी काम करेंगे, मान लीजिए इंसर्शन करा रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसमें एरर आएगा क्योंकि आपके लॉजिकल कंसेप्ट में गड़बड़ थी. तो जिस तरीके की गड़बड़ यहाँ पे मौजूद थी उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टोरेज पर भी आएगा.
तो हमारे जो 2 लेवल्स ऑफ रिलेशन स्कीमास होते हैं वो यही कहते हैं कि हमें दोनों लेवल पे चेक करना है, लॉजिकल लेवल पे भी और स्टोरेज लेवल पे भी। इससे हमें पता चलता है कि हमारा डेटाबेस एक गुड डिज़ाइन का है या बैड डिज़ाइन का है। तो हम बिना देखे, बिना यूज़ करे, बिना डिफाइन करे नहीं कह सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस हमारा गुड होगा या बैड होगा। तो इसीलिए डिज़ाइन जो होता है सबसे ज़्यादा बेस रिलेशन से ही डिफाइन किया जाता है। और हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होती है जिससे हम ये देखते हैं कि हमारा डेटाबेस गुड डिज़ाइन है या बेस या बैड रिलेशन की डिज़ाइन में आ रहा है। तो सबसे पहले इनफॉर्मल डिज़ाइन गाइडलाइंस हमें यही बताती हैं कि हम फॉर्मल मेथड के थ्रू चेक करने से पहले ये देखें कि इनफॉर्मली, जनरली हम किस तरीके से अपने डिज़ाइन को कह सकते हैं कि वो अच्छा है या बैड है। तो हमारे पास इनफॉर्मल डिज़ाइन गाइडलाइंस के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें इन सबको देखने के लिए कहती हैं और उनसे हम ये रफली चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटाबेस गुड की कैटेगरी में आता है या बैड की कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनफॉर्मल डिज़ाइन गाइडलाइंस। अच्छा, हम इनफॉर्मल डिज़ाइन गाइडलाइंस को क्यों यूज़ करते हैं, ये चेक करने के लिए कि गुड रिलेशनल डिज़ाइन है कि नहीं है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट्स भी होते हैं फॉर्मली। फॉर्मल कंसेप्ट्स क्या होते हैं, हमारे फॉर्मल कंसेप्ट्स ये कहते हैं कि हम किस तरीके से फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मल फॉर्म के थ्रू उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की नॉर्मल फॉर्म, ये हम आगे देखेंगे और इन्हीं के बेसिस पर हम ये डिफाइन करेंगे फॉर्मल मेथड। तो हमारे 2 फॉर्मल मेथड होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का और दूसरा होता है नॉर्मल फॉर्म का। तो इन सब के थ्रू हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये किस तरीके से हमारा काम चला रहे हैं, या यूँ कहिए कि कैसे हमारा इसके थ्रू काम होता है। अब आती है सबसे पहली बात कि इनफॉर्मल मेथड्स की गाइडलाइंस क्या कहती है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि सीमेंटिक्स ऑफ द रिलेशनल एट्रीब्यूट मस्ट बी क्लियर। हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट्स हैं रिलेशनल टेबल के अंदर या डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस या टेबल्स के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं उनका मीनिंग क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। तो हमारी पहली गाइडलाइन क्या कहती है, पहली गाइडलाइन यही कहती है कि अगर जो भी टपल्स हैं किसी भी रिलेशन के अंदर, किसी भी टेबल के अंदर जो भी टपल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी और रिलेशनशिप इंस्टेंस के बारे में ही बताने चाहिए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, फिर लॉजिकल स्कीमा बनता है और फिर हमारे पास फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है डेटाबेस की। आप जानते हैं जब हम कंसेप्चुअल स्कीमा की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कंसेप्चुअल स्कीमा में सिर्फ कंसेप्ट होता है। तो आप पिछले यूनिट में हमने देखा था कि हमारे पास एंटिटीज़ और रिलेशनशिप कैसे काम करते हैं। तो कहने की बात क्या है कि जब हम ईआर मॉडल बनाते हैं तो ईआर मॉडल में हमारे पास क्या होता है, ईआर मॉडल में हमारे पास ये एंटिटी होती है और उसके बाद ये एट्रीब्यूट्स जुड़े हुए होते हैं। तो एंटिटी जो होती है किसी न किसी एट्रीब्यूट से जुड़ी होती है। जब हम इसके बेसिस पे अपना रिलेशनल टेबल बनाते हैं तो ये एंटिटी अब टेबल का नेम हो जाती है और यहाँ से हमारे पास वो टेबल बन जाता है। तो हम इस टेबल में अब क्या लेते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हमारे बन जाते हैं। तो अब ये क्या हो गए, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए और ये टेबल का नेम हो गया। तो एंटिटी तो टेबल का नेम है, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स उसके जो एंटिटी के होते हैं डिफाइन करते हैं वही हमारे पास एट्रीब्यूट टेबल में भी होते हैं। तो हम एंटिटी के बेसिस पे टेबल को डिफाइन करते हैं। तो कहने की बात यह है, पहली गाइडलाइन हमें यही बताती है कि जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे रिलेशनल डेटाबेस में हो उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो ये पहली गाइडलाइन ने क्या बताया कि जब भी आप किसी भी टपल को देखें टेबल में या रिलेशन में तो वो एक ही एंटिटी और रिलेशनशिप के बारे में बताए। तो अगर यहाँ पे एंटिटी एम्प्लॉई है तो ये एम्प्लॉई जो है, ये एट्रीब्यूट्स जो है इसी एम्प्लॉई के बारे में ही बताएंगे। और यहाँ पर भी जब हमने रिलेशनल मॉडल बनाया, रिलेशनल टेबल बनाया, डेटाबेस बनाया, तो जो एंटिटी हमने यहाँ पर ली है उसी के एट्रीब्यूट से हम उसको काम करेंगे। तो यही एट्रीब्यूट्स हमें यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। तो पहली गाइडलाइन यही कहती है कि एट्रीब्यूट चाहे डिफरेंट एंटिटी के हों लेकिन उन्हें मिक्स नहीं होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ फॉरेन कीज़ होनी चाहिए जो कि एंटिटीज़ के बारे में क्लियरली बताती हैं। एंटिटी और रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से अलग अलग रखने चाहिए जिससे कि हमारा सारा काम होता है। तो अगर इन द शॉर्ट हम कंक्लूजन देखें, रिजल्ट देखें, तो हमें क्या पता चला कि हमारा स्कीमा इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो इजीली एक्सप्लेन करा जा सके रिलेशन बाय रिलेशन पे और उसके एट्रीब्यूट्स का मीनिंग इजीली इंटरप्रेट किया जा सके। तो पहली गाइडलाइन हमारी यही होती है, सिमेंटिक्स ऑफ रिलेशनल एट्रीब्यूट मस्ट बी क्लियर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ
अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये डेटाबेस था जिसमें कि हमने कंपनी डेटाबेस के बारे में बात करी थी। स्टार्टिंग से हम अपने रिलेशनल मॉडल को इसी कंपनी डेटाबेस से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ये एम्प्लॉय है, ये डिपार्टमेंट है, ये लोकेशंस हैं। तो हमारा जो भी डेटाबेस बन रहा था, हमारा स्कीमा के अंदर हमारे पास ये डेटाबेस था, ये इस तरीके के हमारे पास ये बने थे। तो कहने की क्या बात है, अगर मैं एक पर्टिकुलर टेबल की बात करूं तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और हमारे पास इस टेबल में ये भी पता है कि प्राइमरी की क्या होगी और फॉरेन की क्या होगी। तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स का पहला पॉइंट यही कहती है, पहली गाइडलाइन यही कहती है कि टेबल के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए और एक एट्रीब्यूट एक ही एंटिटी, एक ही रिलेशन के अंदर डिफाइन होना चाहिए। ये नहीं कि आप सब जगह ले लें। अब जैसे डी नंबर है तो डी नंबर आपने यहाँ पे भी लिया है और यहाँ पर भी लिया है, लेकिन यहाँ पे डी नंबर एक फॉरेन की को रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय टेबल के, और यहाँ पर डी नंबर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी की में। तो फॉरेन की के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। कॉमन एट्रीब्यूट मतलब हमने लिया तो बेसिकली एम्प्लॉय में ही है यहाँ पर, और यहाँ पर उसको डिपार्टमेंट में लिया है, लेकिन उसने हमें ये बताया कि यहाँ पर ये फॉरेन की के तरह यूज़ हो रहा है और यहाँ पर ये प्राइमरी की है। तो दो डिपार्टमेंट्स दो टेबल में रिलेट करने के लिए, क्योंकि फॉरेन की का कंसेप्ट यही कहता है कि एक टेबल रेफरेंस टेबल होता है, दूसरा रेफरेंशियल टेबल होता है। तो डी नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो दो रिलेशंस में यूज़ हो रहा है, एक में रेफरेंस के तौर पे, एक में रेफरेंसिंग के तौर पे। तो ये सब हमें पता होना चाहिए जिससे कि हम क्लियरली डिफाइन कर सकें। तो हमारे पास जो भी कंसेप्ट है वो हमें पहला पॉइंट यही कहता है कि तभी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा रिलेशनल डेटाबेस गुड है या बैड है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट को जानने की। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है टपल्स की और अपडेट एनोमलीज की, वो नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारे पास जो भी टपल्स की इंफॉर्मेशन है वो रिडंडेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अपडेट में कोई भी एनोमली नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा होगा तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी स्टोर्ड हो जाएगी जिससे कि स्टोरेज स्पेस वेस्ट होगा और उसकी वजह से अपडेशन में हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ना हम इंसर्ट कर पाएंगे, ना डिलीट कर पाएंगे और ना मॉडिफिकेशन होगा। तो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन टपल्स में नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो भी रिलेशनल डेटाबेस है या जो भी टेबल बनाए, जैसे कि चाहे ये एम्प्लॉय का है, चाहे डिपार्टमेंट का है, चाहे लोकेशन का है, चाहे प्रोजेक्ट का है, इनमें कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए जिनके टपल्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकल कर आए, ठीक है, या फालतू की इन्फॉर्मेशन आए, क्योंकि हमें उसकी वजह से स्पेस बहुत सारा स्पेयर करना पड़ता है, वेस्ट करना पड़ता है और हमारी अपडेट में दिक्कत आती है। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट को डिटेल में देखें तो हमारे पास अपडेट एनोमली में क्यों दिक्कत आती है, ज़रा ये चीज़ हम एक एग्जांपल से देखते हैं। भाई हमने कहा कि हमारे पास टपल्स में अब वो नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी वजह से अपडेट करने में दिक्कत आती है। अब क्या दिक्कत आती है ये देखिए ज़रा। अगर मान लीजिए आपने अपडेट ऑपरेशन किया तो कंसीडर द रिलेशन। सबसे पहले आपके पास रिलेशन क्या है? एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय नंबर, प्रोजेक्ट नंबर, ई नेम, ये सब आपके पास एक रिलेशन है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जब आपने अपडेट किया तो अपडेट करने पे क्या हुआ? चेंजिंग द नेम ऑफ प्रोजेक्ट नंबर P1 फ्रॉम बिलिंग। अब आप मान लीजिए अपडेट करते हैं तो जो प्रोजेक्ट नंबर है वो बिलिंग से कस्टमर की तरफ जब आप जाते हैं तो इसका मतलब अपडेट होने पे बहुत दिक्कत आएगी। भाई अभी आपके पास प्रोजेक्ट का नंबर जो था P1 था और P1 जो रिप्रेजेंट कर रहा था बिलिंग को कर रहा था। अब आपने बिलिंग की जगह उसका नाम बदल के क्या कर दिया? कस्टमर अकाउंटिंग कर दिया। तो जब आपने कस्टमर अकाउंटिंग किया तो इसका मतलब अपडेट होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पहले आप प्रोजेक्ट नंबर P1 का मतलब था बिलिंग वाला नंबर, बिलिंग वाला प्रोजेक्ट। अब ये हो गया कस्टमर अकाउंटिंग, आपने नाम बदल दिया। तो इसका मतलब है अगर 100 एम्प्लॉयज़ थे, 100 एम्प्लॉयज़ हमारे पास प्रोजेक्ट P1 में काम कर रहे थे, तो हमें उन 100 के लिए उसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। हो गई ना गड़बड़? तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो 100 P1 प्रोजेक्ट में अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो अब वो पूरे के पूरे 100 एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास रिडंडेंट बहुत सारे एक्स्ट्रा टपल्स आ गए हैं। अब हम इंसर्शन में देखें। अगर इंसर्शन में देखें तो हमारे पास यही एक प्रोजेक्ट है, यही एक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट है। अब इस एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पे हमारे ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। जब हम इंसर्ट कराते हैं तो इंसर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोजेक्ट में इंसर्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास एक एम्प्लॉय इज़ असाइन टू इट। आज जब तक हम प्रोजेक्ट में किसी भी एम्प्लॉय के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक हम इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते। भाई हमने कहा एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट है, आपने टेबल का नेम देखा, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट मतलब दो टेबल से मिलकर बना है। अब आपने यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, तो एम्प्लॉय का नंबर ले लिया है, प्रोजेक्ट का नंबर ले लिया है, एम्प्लॉय का नेम ले लिया है, प्रोजेक्ट का नेम ले लिया है, लेकिन इंसर्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि प्रोजेक्ट में जब तक हम एम्प्लॉय असाइन नहीं करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट पे काम करता है, प्रोजेक्ट नंबर पे एम्प्लॉय रिलेटेड नहीं होगा जब तक हमारा इंसर्शन नहीं होगा। इसी तरीके से जब तक हम एम्प्लॉय को इंसर्ट नहीं करते हैं प्रोजेक्ट में, जब तक भी हमारा इंसर्शन नहीं होगा। तो कहने की बात यह, एम्प्लॉय को हमें प्रोजेक्ट से रिलेट करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट को भी एम्प्लॉय से रिलेट करना पड़ेगा, तभी हम इसमें इंसर्शन कर सकते हैं। तो इंसर्ट एनॉमली हमें यही बताती है। अब आता है डिलीट एनॉमली। डिलीट एनॉमली में क्या होता है? डिलीट एनॉमली में भी अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो हमारे पास डिलीशन में भी अगर यही टेबल है, यही रिलेशन है एम्प्लॉय प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पे भी हमें दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? जब भी हमारे पास प्रोजेक्ट डिलीट होगा तो इसका मतलब जितने एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। भैया आपने अगर एम्प्लॉय नंबर, प्रोजेक्ट नंबर, ई नेम, प्री नेम, नंबर आवर्स लिए, तो इसका मतलब क्या है? जब भी आपने प्रोजेक्ट को डिलीट किया, इसका मतलब क्या है? उसका रिजल्ट क्या आएगा कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं प्रोजेक्ट में डिलीट हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर आप एम्प्लॉय को लेते हैं और ये कहते हैं कि एम्प्लॉय ही उस प्रोजेक्ट पे काम करता है और आप एम्प्लॉय को डिलीट करते हैं, तो मतलब सारे प्रोजेक्ट पे भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे टेबल का नाम एम्प्लॉय प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से ये टेबल था, ये रिलेशन था, आप देखिए। तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में अगर हमने लिया तो हमारे पास एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के ये एट्रीब्यूट्स मिलकर बना रहे हैं। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट लिया तो एम्प्लॉय के और प्रोजेक्ट के ये एट्रीब्यूट्स मिलके इस टेबल को बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों में अपडेशन में प्रॉब्लम आती है। पहला टेबल ये है क्योंकि ये हमारे पास एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का है, दूसरा एम्प्लॉय प्रोजेक्ट का है। तो इस टेबल में हमारे को अपडेट करने में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय ई नेम लेंगे तो आपके पास पी नेम भी होना चाहिए। अब ई नेम डिलीट कर देंगे तो पी नेम में एरर आ जाएगा। पी नेम और ई नेम आपस में रिलेटेड हैं। इसी तरीके से ई नेम को अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट का नंबर भी डिलीट होना चाहिए। अगर एक को डिलीट करेंगे तो दूसरा डिलीट नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाला है, जिसमें कि हमने नेचुरल जॉइन लगाया, क्योंकि ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट दो टेबल से मिलकर बना है, एम्प्लॉय टेबल से और डिपार्टमेंट टेबल से। जब हमने इसको मर्ज किया तो ये रिडंडेंसी आ गई। ये रिडंडेंसी मतलब एक्स्ट्रा वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं टपल्स की। आप देख रहे हैं रिसर्च 2 बार आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन 2 बार आ गया है। इस तरीके से कहने की बात क्या है, ये एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं और ये एक्स्ट्रा टपल्स हैं जो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो है हमारी रिडंडेंसी की वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहा है। ये हमारी रिडंडेंसी वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से जब हमने एम्प्लॉय प्रोजेक्ट बनाया तो एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में भी हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल कर आई एक्स्ट्रा। तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं थी, ये हमें मिले हैं क्योंकि हमने दोनों टेबल्स को मर्ज किया है। तो रिडंडेंसी की वजह से हमारे अब अपडेशन में दिक्कत आ रही है। तो आप जब भी नेचुरल ज्वाइन आप क्वेरी कर चुके हैं, आप क्वेरी में अगर करके देखें तो किसी भी टेबल को ज्वाइन करा के देखें तो नेचुरल ज्वाइन कराने पे हमारे पास ये टेबल आएगा। अब उसमें हम अगर इंसर्शन डिलीशन कराएंगे तो हमारे पास क्वेरी में रिजल्ट में आउटपुट में गड़बड़ निकल कर आएगी। तो यही सब हमें एम्प्लॉय प्रोजेक्ट जो है बताता है। अब अगर हम इस पॉइंट के बेसिस पे अपनी गाइडलाइन देखें जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेटाबेस का डिज़ाइन गुड होगा या बैड होगा, तो हमारे पास गाइडलाइन नंबर 2 आ जाती है। गाइडलाइन नंबर 2 क्या कहती है? वो कहती है डिज़ाइन अ स्कीमा दैट डज नॉट सफ़र फ्रॉम द इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट एनॉमली। तो हमारे पास एक स्कीमा बनेगा जो कि इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट एनॉमली में अप्लाई नहीं होगा। मतलब उसके अंदर जो है ऐसा होना चाहिए स्कीमा कि इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट में आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी एनॉमली ना मिले। अगर एनॉमली मिलती है तो हम उसे नोट करते हैं और जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें। तो स्कीमा की जो हमारी सेकंड गाइडलाइन है वो हमें यही बताती है कि अगर हमारे पास डिज़ाइन अच्छा होगा तो पहली बात तो उसमें एनॉमली नहीं होगी, और अगर एनॉमली होगी भी तो हम उसे जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 1। थैंक यू।